Hello everybody, welcome back to my channel Judiciary Possible. My name is Aishi Dubey and in today's video we are going to continue with the topic of Arbitration and Conciliation Act 1996. But before moving forward with the video, please do like my video, share it with your friend and subscribe to the channel Judiciary Possible. Also, I have a Telegram group where I keep on posting every day certain legal update and MCQs related to the upcoming examination. If you are interested in those, please follow me on Telegram, the handle of which is in the description box. Okay, so let's begin with the Arbitration and Conciliation Act. We have done till chapter number 5 and today we are going to do chapter number 6, which deal with making of arbitral award and termination of proceeding. Please do keep the BEAR Act with yourself upon you because we are going to mark certain important clauses which are important with respect to our prelims examination. Also, one more thing that the DGS examination notification can come within 1 or 2 months. It's hopeful that it's going to come within 1 or 2 months. So the subject is also plays a very important role in DGS examination. Hence, these lectures are not going to help you only on SEBI examination but also in the DGS examination. So please do watch the whole video, and then in case you don't understand anything, write down in the comment section and I'm going to help you with those sections as well. Okay. So let's begin. Chapter 6, Making of Arbitral Award and Termination of Proceeding. So what does it begins from section number 28 to 33. Okay. The section 28 talks about rules applicable to substance of dispute. Okay. ये हमारा हेडिंग है. हेडिंग क्या है? सेक्शन 28 की रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट. अब इन योर नोट्स कॉपी और इफ यू आर राइटिंग डाउन एनीवेयर मेक ऐसे करके एक चार्ट बना लो दो तरह का. फर्स्ट में होगा कि इफ द आर्बिट्रेशन इज डोमेस्टिक इन नेचर, दैट इज अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, एंड इफ द आर्बिट्रेशन इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. In the column where it is domestic arbitration, write down that substantive law which is applicable in India will be applied in such cases. Okay? आपने यहाँ लिख दिया डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और उसके नीचे लिख दिया कि सब्सटैंटिव लॉ ऑफ इंडिया विल बी एप्लीकेबल. जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड चार्ट का पार्ट है, वहाँ पे आपने लिखा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और उसके नीचे 3 पॉइंट होंगे कि कैसे लॉ लगे, कौन से रूल अप्लाइड होंगे. पहला होगा एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. सेकेंड होगा पार्टीज कैन अडॉप्ट एनी लीगल सिस्टम बट इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल ऑफ लॉ. मतलब पार्टीज अपने में डिसाइड करके कोई भी लीगल सिस्टम अडॉप्ट कर सकती हैं बट वो रूल ऑफ लॉ जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए. एंड द थर्ड इज इन केस एज पर द अग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा है और पार्टीज भी अपने में नहीं डिसाइड कर पा रही हैं, तो जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड कि कौन सा रूल या कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 2 मैक्सिम को ध्यान में रखेंगी बिफोर इन्फोर्सिंग और रिकमेंडिंग एनी सच प्रोसीजर. ओके, तो 2 मैक्सिम जो है उसमें से पहला मैक्सिम है SX EX स्पेस AEQUOX equo et bono. ओके, पहला मैक्सिम है एक्स equo et bono जिसका मतलब है इनजस्टिस एंड फेयरनेस. बेसिकली नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है. SX equo et bono मीन्स इनजस्टिस एंड फेयरनेस. जो सेकेंड मैक्सिम है वो है एमिएबल AMIABLE एमिएबल कॉम्पोजिट्योर COMPOSITEUR एमिएबल कॉम्पोजिटोर. इसका मतलब है कि आर्बिट्रर इज ऑथराइज टू अबेट समथिंग ऑफ स्ट्रिक्टनेस ऑफ लॉ इन फेवर ऑफ नेचुरल इक्विटी. मतलब कि आर्बिट्रेटर जो होगा ही विल प्रिफर नेचुरल इक्विटी, नेचुरल जस्टिस ओवर एनी स्ट्रिक्ट लॉ विच इज अप्लाइड. ओके, तो बेसिकली दोनों हम नेचुरल जस्टिस की तरफ ही बेंड हो रहे हैं. रिमेंबर दीज 2 मैक्सिम, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर इसका मीनिंग पूछा जा सकता है. तो रिमेंबर दीज 2 मैक्सिम.
Okay, now we come to section number 29, which talks about decision making by panel of arbitrator. Okay, अगर कोई आर्बिट्रल प्रोसीडिंग हो रही है, द डिसीजन जो होगा वो मेजॉरिटी का हमेशा लिया जाएगा. ओके, इन केस अगर कोई प्रोसीजर पे कोई क्वेश्चन आता है तो इन दैट केस जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा, इफ देर आर मोर देन वन आर्बिट्रेटर, मतलब 3 या 5 होगा, तो उसमें जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होता है, जो हम जैसे जो दो आर्बिट्रेटर मिलके थर्ड आर्बिट्रेटर को एज अ अपने ऊपर एक उसको एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर चेयरमैन टाइप का बना देते हैं, तो उसका जो से होता है वो फाइनल डिसीजन होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वेश्चन विच अराइजेज विद ऑन प्रोसीजर. ठीक है, और प्रोसीडिंग पे जो होता है, और अगर कोई प्रोसीडिंग में कोई डिस्प्यूट होता है उस पे जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी का हमेशा लिया जाएगा. ओके, देन वी कम टू सेक्शन नंबर 29A. ओके, it is a very important section which talk about the time limit for arbitral award. टाइम लिमिट क्या होगा अवार्ड के लिए? तो जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा, द फर्स्ट क्लॉज है, इट शैल बी मेड विद इन 12 months. ठीक है, आपका पूरा प्रोसीडिंग और अवार्ड 12 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए. अगर सेकेंड क्लॉज है, इफ अपॉन रेफरेंस, जब पार्टी रेफर करती है आर्बिट्रेटर के लिए, और अपॉन रेफरेंस जब आर्बिट्रेटर आ जाता है उस डेट से अगर विद इन 6 months आपने डिसीजन दे दिया, आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया, इन सच सिनेरियो एडिशनल फीस इन आर्बिट्रेटर्स को मिलेगी. ओके, टाइम लिमिट क्या है कि 12 महीने के अंदर हमें आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है और आर्बिट्रल अवार्ड देना है. मगर अगर 6 महीने के अंदर ही आर्बिट्रल सेटलमेंट हो गया, अवार्ड मिल गया, तो इन सिचुएशन में जो आर्बिट्रेटर हैं उनको एडिशनल फीस मिलेगी जो पार्टीज अपने में डिसाइड करके देंगी. ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है इन केस वेयर विद इन 12 months मैटर नहीं डिसाइड हो पाता है, आर्बिट्रल अवार्ड नहीं मिल पाता है, तो एक्सटेंशन कोड देती है 6 months का. ठीक है, इन केस अगर एक्सटेंशन के बाद भी जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो नहीं मिल पा रहा है, तो कोर्ट के पास और पार्टीज के पास एक ऑप्शन होता है कि टर्मिनेट, उस जो आर्बिट्रेटर है उनको हटा दो. ठीक है, उनको हटा दो, और एक पेनाल्टी भी उन पे इम्पोज हो जाती है, 5% रिडक्शन ऑफ फीस पर मंथ डिले का. हर मंथ जितने भी महीने डिले हो रहा है उतने महीने का 5% फीस रिड्यूस होता जाता है. और अगर सफिशिएंट रीजन मिल जाता है, सफिशिएंट रीजन है कि इस वजह से नहीं हो पाया विद इन 6 months, तो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिल जाता है, मगर उसके लिए एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसको कोर्ट डिसाइड करती है विद इन 60 days. पर ये एक्सटेंशन तभी मिलता है व्हेन देयर इज सफिशिएंट कॉज, और कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है तभी. ठीक है, अगर पार्टी ये डिसाइड करती है कि आर्बिट्रेटर जानबूझ के या वो नहीं सेटिस्फाइड है उन आर्बिट्रेटर के एंड द डिले इज गोइंग ऑन, दे कैन टर्मिनेट द agreement with the arbitrator who is already appointed and can appoint a substitute arbitrator. और अगर जब substitute arbitrator लाते हैं so he will start from the point जहाँ से वो पुराना जो arbitrator है वो terminate हो रहा है, वो वापस से पहले से proceeding नहीं चालू करेंगे. जहाँ से उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है उससे पहले की proceeding को वो yes रखा जाएगा और उसके बाद की proceeding वो handle करेगा. ओके, आई होप 29 आपको समझ में आ गया है. इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या है कि 12 months में डिसाइड होगा, एक्सटेंशन मिलेगा 6 month का. अगर इसमें नहीं कर पाए तो रिडक्शन होगी फीस की 5%. अगर और एक्सटेंशन चाहिए और कोर्ट को लगता है देयर इज अ सफिशिएंट रीजन, तो 5% का रिडक्शन एज अ पीनल पेनाल्टी तो पड़ेगी ही आर्बिट्रेटर को. उसके बाद एक एक्सटेंशन मिल जाएगा और वो एप्लीकेशन डिसाइड करेगा कोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, मगर विद इन 60 days तो उसको डिसाइड कर देना होगा. अगर पार्टीज नहीं सेटिस्फाइड हो रही हैं तो वो आर्बिट्रेटर को सब्सिट्यूट कर सकती हैं विद द न्यू आर्बिट्रेटर. और अगर 6 महीने के अंदर ही डिसाइड कर लिया, आधे टाइम में ही डिसाइड कर लिया, तो एक एडिशनल फीस मिलती है, एडिशनल पेमेंट मिलता है आर्बिट्रेटर्स को, और वो जो अमाउंट होता है वो पार्टीज अपने में अग्री करके उनको देती हैं.
ठीक है. नाउ वी कम टू सेक्शन नंबर 29B विच टॉक अबाउट फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. ऑलरेडी जो आर्बिट्रेशन एक्ट है उसका एम होता है कि हम जो प्रोसीजर है वो एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, इसीलिए वो 12 मंथ का है ना. 12 मंथ का टाइम लिमिट इसीलिए है कि 1 साल के अंदर ही हो जाए. वरना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर. मगर उसको भी अगर फास्ट ट्रैक करना होता है तो पार्टीज अग्री करती हैं कि वी नीड मोर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर एंड बिफोर और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो ये डिक्लेयर कर देती हैं कि वी नीड अ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर. अब फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सेलरेट कर देती हैं प्रोसीडिंग को, जल्दी जल्दी हो जाती है. वो क्या है कि ओरल हियरिंग नहीं होती है फिर, ठीक है ना. जो क्लॉज ए है, अगर आप क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि नो ओरल हियरिंग विल टेक प्लेस. केवल जो रिटन प्लीडिंग है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, उनके बेसिस पे ही जो आर्बिट्रेटर्स हैं और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो आर्बिट्रल अवार्ड डिसाइड करेगी. B है, they have the power, the arbitrator and the tribunal will have the power to call for any further information or clarification which they need. The third clause says that if there is the necessity in such scenario, they can hear oral hearing only in certain circumstances. कुछ चीज़ों का अगर नेसेसरी लग रहा है ट्रिब्यूनल को, केवल उन सिचुएशंस में they can adopt or they can call for oral hearing, not for the whole procedure but only for those certain circumstances. And the last point is that they can dispense, they can get away. वो कुछ technical formalities हैं वो उसको हटा देंगे and they will directly come to the arbitral tribunal in order to fast track the process. Okay? Fast track procedure में जो arbitral award है वो within 6 months देना होगा. हमने 12 मंथ्स का टाइमलाइन पढ़ा है कि 12 मंथ मैक्सिमम टाइम है, इसमें मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 30. रिमेंबर ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस आर इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट वन सेक्शन, आप वो स्किप कर सकते हो. उसके अलावा इस चैप्टर का चैप्टर 6 के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इट कैन बी आज वो टाइम पूछ सकते हैं, जो टाइम लिमिट पूरा ग्राफ है आप वो पूछ सकते हैं कोर्ट प्रीलिम्स में, DGF में भी पूछ सकता है, सेबी में भी पूछ सकता है. इनफैक्ट सेक्शन नंबर 29A and 29B both are important with respect to your mains examination as well. Okay, now we'll come to section number 30 which talks about settlement. So arbitral tribunal can recommend the parties to go for other proceeding or they can recommend other proceeding apart from arbitration. That is, they can recommend mediation, they can recommend conciliation, negotiation, because at the end of the day the aim or object of arbitration and conciliation act is to get over with the proceeding and give the award as soon as possible. टाइम सेविंग, मनी सेविंग, ये बेसिक एम है, जो बेसिक क्रक्स है इस एक्ट का. सो दे कैन रिकमेंड टू सेटलमेंट थ्रू एनी अदर प्रोसीजर. इन केस सेटलमेंट हो जाता है किसी और प्रोसीजर के इन सच सिनेरियो, तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग चल रही होती है दैट प्रोसीडिंग विल बी टर्मिनेटेड एंड द सेटलमेंट विल बी गिवन एज द सेम स्टेटस, उसको सेम स्टेटस मिलेगा एज दैट ऑफ एनी अदर आर्बिट्रल अवार्ड. ओके, सेम स्टेटस वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जो सेटलमेंट डिसाइड हो जाता है, जो आर्बिट्रेशन के अलावा कोई और मेथड यूज करके हो रहा है, उस सेटलमेंट को हम सेम स्टेटस देंगे एज प्रोसीडिंग के थ्रू आर्बिट्रल अवार्ड मिला है, हम उसको इक्वल लेवल पे, इक्वल फुटिंग पे रखेंगे. ओके, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 31 विच इज फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. जब आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है देन इट शैल बी साइंड एंड इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्मेट. जो साइन होता है पैनल का, आर्बिट्रेटर का, वैसे तो सबका इम्पॉर्टेंट है बट अगर किसी रीजन से मेजॉरिटी साइन कर देती है और जैसे मान लीजिए 5 आर्बिट्रेटर्स हैं और 3 आर्बिट्रेटर ने साइन कर लिया और 2 आर्बिट्रेटर नहीं साइन कर पाए, तो वो चलेगा अनटिल एंड अनलेस वो ना साइन करने का रीजन. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वी में स्किप द पॉइंट और ऑप्शन में होगा कि मेजॉरिटी का सिग्नेचर इज सफिशिएंट एंड माइनॉरिटी नहीं भी साइन कर रही है तो चलेगा, एंड विल स्किप कि हम सोचेंगे नहीं सबका ही इंपॉर्टेंट होता है सिग्नेचर. तो रिमेंबर क्लॉज सेक्शन नंबर 31
Okay, remember section 31 clause 2. I'll read it down, it is important. For the purpose of subsection 1, arbitral proceeding with more than one arbitrator, the signature of majority of all the members of arbitral tribunal shall be sufficient so long as the reason for the omitted signature is stated. मेजॉरिटी का है चलेगा, जिन्होंने नहीं साइन किया है माइनॉरिटी, उनका रीजन पता होना चाहिए कि क्यों नहीं साइन किया, तो ये चलेगा. ठीक है. देन कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड हो या डिक्री हो या जजमेंट हो, वी नीड टू गिव अ रीजन कि क्यों दिया हुआ है. ओके. जो जज होता है वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है एंड ही गिव्स द रीजन कि हाउ यू हैव कम टू अ कंक्लूजन. बट क्लॉज 3 में ये दिया हुआ है कि 2 सिनेरियो में, 2 सिनेरियो दिए हुए हैं in which the reason for any arbitral award need not be given. Okay, कौन थे वो 2 रिक्वायरमेंट हैं को या सिनेरियो है जब आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है पर रीजन नहीं दिया जाता है. फर्स्ट है इफ द पार्टी अग्रीज दैट दे डू नॉट रिक्वायर एनी रीजन फॉर द आर्बिट्रल अवार्ड, एंड सेकेंड है इफ द अवार्ड इज गिवन एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 30 क्या है? सेटलमेंट. सेटलमेंट क्या था कि हम कोई और मेथड अप्लाई कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आर्बिट्रेशन, दैट इज मीडिएशन या नेगोशिएशन. हम ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ना कि आर्बिट्रेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं. इन सच सिनेरियो सेक्शन 30 से जो सेटलमेंट आ रहा है उस पर जब आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है तो उसमें रीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. आई होप यू गेट इट. Now next clause in the same section is that arbitral award must also state the date and place of arbitration. After the arbitration award is made, and then the signed copy must be delivered to the parties. इसमें फीस की बात नहीं की गई है तो ऑब्वियसली फीस अटैच नहीं होगा इसमें. जब आर्बिट्रल अवार्ड मिल जाता है, कॉपी साइन हो जाती हैं, रीजन देना है नहीं देना है ये भी डिसाइड हो जाता है, फाइनल हो जाता है. तो जब आर्बिट्रल अवार्ड मिल जाता है तो वो जो कॉपी होती है आर्बिट्रल अवार्ड की वो दोनों पार्टीज को या जितनी भी पार्टीज हैं उनको दे दी जाती है. ओके. नाउ वी कम टू सेक्शन नंबर 31 विच टॉक्स अबाउट रिजीम फॉर कॉस्ट. इसमें यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट, ऑल्सो रीड कर लेना. आई डोंट थिंक इन दैट इम्पॉर्टेंट बट रीड इट वंस. बस इसमें हेडिंग याद रखो 31A कॉस्ट अबाउट रिजीम फॉर कॉस्ट. Okay, then we come to section number 32 which talks about termination of proceeding. Okay, arbitral proceeding shall be terminated by final arbitral award or by any other order of arbitral tribunal under इन कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या तो अवार्ड के फाइनल अवार्ड के बाद या फिर कोई और रीज़न हो प्रोसीडिंग के थ्रू वो खुद कैंसिल कर देती है, टर्मिनेट कर देती है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. 3 सर्कमस्टांसेस में, पहला अगर जो क्लेमेंट है जिसने डिस्प्यूट के लिए पहले बोला कि देयर इज अ डिस्प्यूट एंड आई नीड अ सोल्यूशन फॉर इट, अगर क्लेमेंट विड्रॉ कर लेता है, इफ पार्टीज अग्री विद देम दैट दे नीड टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग. और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि किसी भी रीजन से कि इट्स बिकम अननेसेसरी एंड इम्पॉसिबल टू कम टू एन आर्बिट्रल अवार्ड, इन सिनेरियो में, इन 3 सिनेरियो में द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड. क्या 3 रीजन थे या सिनेरियो है? पहला है क्लेमेंट खुद विड्रॉ कर लेता है, सेकेंड रीजन है कि पार्टीज अपने में अग्री कर लेती हैं, एंड थर्ड रीजन है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है दैट इट इज अननेसेसरी एंड इम्पॉसिबल. ओके, to come to a conclusion or to give an award or whether the party deserves an award or not, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ऐसा कुछ लगता है. इस सिनेरियो में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद ही सू मोटो ही प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर देता है. The last section of this chapter is section 33 which talks about correction and interpretation of award, additional award. इसमें बस इतना याद रखना 30 days any clerical error एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट उसके लिए 30 days याद मिलेगा एंड एडिशनल अवार्ड के लिए 60 days मिलेगा. 2 डेट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, 30 days एंड 60 days. दैट्स इट. इसमें और कुछ भी नहीं जानना है. क्लरिकल एरर या इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट है तो 30 days है, एडिशनल अवार्ड है तो 60 days है. दैट इज इट. So I hope you understand the chapter. It was an important chapter
and we need, I guess, 2 more lecture to complete part 1, the domestic arbitration, or you can call other than international commercial arbitration, to complete it. After that I'll take 1 more lecture. Usme I will try to compile all the important cases which comes under part 1 of the act. Okay, I hope you like the video, and if you do like the video, then please do like the video, share it with your friend, and subscribe to the channel Judiciary Possible. Thank you so much.